Good morning students, and again welcome to our economics class. In today's class we study measures to correct deficient demand and excess demand in the economy. In the earlier class we study about what is excess demand, what is deficient demand, what is their meaning, their diagram, their reason, and we also study what are their impact on income, output and employment level. In today's class we study if there is a condition of excess demand or deficient demand in the economy, how we can control it. हम सबसे पहले बात करते हैं deficient demand. I think you know the meaning of deficient demand. Deficient demand means when aggregate demand is less than the aggregate demand required for the full employment. हमें full employment के लिए जितना aggregate demand चाहिए, हमारा aggregate demand level उससे कम है. So it is the deficient demand. और सिंपली बोल सकते हो डिमांड का कम होना इकोनॉमी के अंदर. सप्लाई ज्यादा है, उसके कंपैरेटिवली डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर कम है. So how we can control it? How we can increase the aggregate demand level in the economy? What are its measures? We can divide these measures into two categories: fiscal policy measures and second is monetary policy measures. The fiscal policy measures are mainly relates with the income and expenditure sources of the government. कि कहां से गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है और गवर्नमेंट उस इनकम को कहां पर स्पेंड कर रही है. It is relates with the fiscal policy measures. In this we mainly include 3 points. What are increase in public expenditure. अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी. दोनों करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रेलवे ब्रिज, गवर्नमेंट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड ऑन सब्सिडीज, government also provide more jobs, government also launch poverty elevation program, government also launch employment generation program. So I like to say that government increase its expenditure in different ways to increase the aggregate demand level in the economy. तो अगर deficient demand की कंडीशन है तो क्या होगा, aggregate demand level increase करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी. मैं थोड़ा सा इसको excess के लिए क्लियर कर देता हूं. In the case of excess demand, aggregate demand is more than the aggregate demand required for the full employment. तो deficient demand के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट will reduce its expenditure. गवर्नमेंट को डिमांड कम करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी और स्पेशली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेकंड इज रिडक्शन इन टैक्सेस. अब गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड लेवल इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस रिड्यूस करेगी. और टैक्सेस रिड्यूस करने पर क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करती है तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा, इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करती है तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस कम होगी. एज अ रिजल्ट people can demand more goods and services either by increase in their disposable income or reduce the prices of goods and services in the economy. But in opposite condition there is excess demand in the economy. तो excess demand में क्या होगा, गवर्नमेंट रिवर्स वर्क करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी. अब टैक्सेस बढ़ने पर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ाती है जस्ट लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. अब उसमें क्या होगा, अगर इनकम टैक्स बढ़ाएगी तो जनरल पब्लिक की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगा. या अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगी तो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस राइज हो जाएगी जिससे लोग पहले से कम डिमांड कर रहे हैं. सो इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड taxes will reduce and in the case of excess demand taxes will increase. Third is borrowing from RBI and general public. Government also borrow money to fulfill its deficit, especially fiscal deficit. अगर आपने पढ़ा हो किसी ने तो गवर्नमेंट fiscal deficit के केस में क्या करती है, मनी borrowing कर रही है and fiscal deficit also shows the borrowing requirement of the government. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल पब्लिक से borrowing करेगी और RBI से borrowing करेगी. अगर किसी इकोनॉमी के अंदर, आप समझना इसको, किसी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट कंडीशंस हैं, एग्रीगेट डिमांड कम है तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करेगी, न कि जनरल पब्लिक से. और गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग कर रही है तो क्या होगा,
मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होने पर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड लेवल भी इंक्रीज होगा। अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशनरी कंडीशंस भी अराइज होंगी। अब इसके अपोजिट अगर किसी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की कंडीशंस हैं तो एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट विल बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल पब्लिक से बोरोइंग करेगी बाय डिफरेंट वेज। अब इससे जो मनी का फ्लो है वो चेंज होगा फ्रॉम जनरल पब्लिक टू द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक का पैसा कहां आ रहा है, गवर्नमेंट के पास। इन दैट केस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पब्लिक विल रिड्यूस, उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा एंड द एग्रीगेट डिमांड लेवल विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। सो आई रिपीट अगेन, व्हाट आर फिस्कल पॉलिसी मेजर्स? Fiscal policy measures are those which are relates with the expenditure and different revenue source of the government. In the case of excess demand, government will increase the public expenditure, government will reduce the taxes or borrowing from RBI. But in the case of excess demand, government decrease the public expenditure, government increase the tax level and government borrow the money from the general public. So these are the fiscal policy measures to control either deficient demand or the excess demand. Next we have the monetary policy measures. Monetary policy measures are the measures which are taken by the RBI to control the money supply in the economy, and we can divide them into two categories, quantitative measures and qualitative measures. Unfortunately इस साल जो CBSE ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस करा तो उसमें इन पॉइंट्स को सीबीएसई ने कट कर दिया, पर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हमारे को यहां तो बढ़ना पड़ेगा पर कहीं ना कहीं हमारे लिए वो चीज यूजफुल रहेगी। ओके, हम यहाँ पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स का। पहला पॉइंट है रिडक्शन इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज अ पार्ट ऑफ एलआरआर। हम सिंपली कह सकते हैं सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कि जो मनी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होती है उसका एक फिक्स परसेंटेज उनको अपने पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, इट इज द सीआरआर। इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, आरबीआई विल रिड्यूस द सीआरआर। आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर का रेशियो कम कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक को कम मनी सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ेगी और उसका इंपैक्ट क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। आई रिपीट अगेन, रिडक्शन इन सीआरआर क्या बता रहा है कि जो मनी हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका एक फिक्स परसेंटेज उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी कंडीशन है तो आरबीआई इसको रिड्यूस करेगा, जिससे कमर्शियल बैंक को कम अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा और कमर्शियल बैंक ज्यादा क्वांटिटी में क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। बट अगर इसके अपोजिट एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो एक्सेस डिमांड में आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को इंक्रीज करेगा कि कमर्शियल बैंक ज्यादा फंड सेंट्रल बैंक के पास रखें और उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए कम फंड बचे। और एक्सेस डिमांड में आरबीआई यही चाहेगा, गवर्नमेंट भी यही चाहेगी कि एग्रीगेट डिमांड लेवल डिक्रीज हो। सेकंड इज रिडक्शन इन एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्पेशली लिक्विडिटी रेशियो, कि जो मनी हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका फिक्स परसेंटेज उनको अपने पास कैश, गोल्ड, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। ये कितना रखेगा कि डिसाइड बाय द आरबीआई, और जो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई एसएलआर में चेंजेस करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को कम कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक कम क्वांटिटी में टोटल डिपॉजिट का एक पास अपने पास रखेंगे और उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज्यादा फंड बचेगा। इट आल्सो वर्क जस्ट लाइक सीआर, पर दोनों के नेचर में चेंज। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा, इस एसएलआर को बढ़ा देगा, जिससे कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट्स का ज्यादा पार्ट अपने पास रखेंगे और उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए कम फंड अवेलेबल होगा। सो आई रिपीट अगेन, इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एसएलआर विल डिक्रीज और इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड एसएलआर विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज द रिडक्शन इन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट ऑन व्हिच सेंट्रल बैंक गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आरबीआई पूरा करता है रेपो रेट से, एंड दिस रेपो रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक।
आप सिंपली समझिए, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है वो कहलाता है रेपो रेट, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी, सो एक्सेस डिमांड विल कम्स अंडर कंट्रोल इन द कंट्री। सो टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड this repo rate will increase, but if the condition of deficient demand, this repo rate will decrease in the economy. Next is reduction in reverse repo rate. Reverse repo rate क्या होता है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस क्वांटिटी में फंड्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक उन फंड्स को आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट कर देते हैं, और उसके बिहाफ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ये उल्टा है, अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड डिपॉजिट हो गए तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उन फंड्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देगा, और उसके बिहाफ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा क्वांटिटी में लोन प्रोवाइड करें और अपने पास ज्यादा क्वांटिटी में लोन प्रोवाइड करें और सेंट्रल बैंक के पास कम क्वांटिटी में फंड डिपॉजिट्स करें। अगर इसके अपोजिट एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आरबीआई के पास फंड डिपॉजिट्स कराएं और क्रेडिट क्रिएशन कम करें। नेक्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट इज सिमिलर टू द रेपो रेट। बहुत बड़ा एक डिफरेंस के अंदर बहुत बड़ा ये है कि बैंक रेट जनरली लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, ठीक है, और इसको डिस्काउंटेड रेट भी बोला जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास टोटल फंड्स डिपॉजिट्स हैं, उनके बिहाफ पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और जिस रेट पर वो लोन प्रोवाइड करेगा वो कहलाता है बैंक रेट। अगर आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिससे क्रेडिट महंगा होगा और जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगर इसके अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा, रिडक्शन इन बैंक रेट, आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगा, और बैंक रेट कम होने पर क्या होगा, कमर्शियल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए क्रेडिट की डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज इन ओपन मार्केट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेट्रा बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट में बॉन्ड्स सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है बाय द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और अदर कमर्शियल बैंक। अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई क्या करेगा, इन फंड्स को परचेज करेगा। अब परचेज करने पर क्या होगा, आरबीआई का जो मनी फ्लो है वो कमर्शियल बैंक के फेवर में चला जाएगा, और कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा फंड क्रिएट होगा और वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। एंड इसके अपोजिट एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा, बेचेगा। आरबीआई बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज सेल करेगा, किनको, कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, और उस सिचुएशन में जो मनी फ्लो है वो कहां चेंज होगा, कमर्शियल बैंक टू द आरबीआई, एंड इन दैट केस एक्सेस डिमांड will comes under control in the economy. One more is reduction in margin requirement. अब margin requirement क्या होता है, it is the difference between any assets which offered to the bank for mortgage and loan granted by the bank. अगर हमारे को बैंक से लोन चाहिए तो मॉर्गेज गिरवी रखने के लिए जो एसेट्स हम बैंक के सामने ला रहे हैं और बैंक उसके बदले में हमारे को जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच का डिफरेंस हमारे लिए क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास प्लॉट है और उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीस और उसने बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट की डिमांड करी और बैंक ने कहा हम आपको 80% लोन सैंक्शन करेंगे, मतलब 50 लाख के प्लॉट पर 40 लाख देंगे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया 20%। 20% मार्जिन काटने और कमर्शियल बैंक 50 लाख के प्लॉट पर 40 लाख लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। अगर मान लीजिए 10% ही कर दिया तो 50 लाख के लोन पर 45 लाख, 50 लाख के प्लॉट पर 45 लाख लोन दिया जाएगा और उस सिचुएशन में जब लोन ज्यादा मिलेगा तो डिमांड लेवल इंक्रीज होगा और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशंस कंट्रोल में आएंगी।
पर इसके अपोजिट अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड की कंडीशंस के अंदर क्या होगा, आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। मान लो 20 से बढ़ा के 30% कर दिया तो 50 लाख के प्लॉट पर 35 लाख की लोन मिल रहा है। सो इन दैट केस इन द इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड लेवल कम्स कंट्रोल। एंड लास्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशंस है तो आरबीआई क्या करेगा, कंज्यूमर्स क्रेडिट को बढ़ाएगा। डिफरेंट तरह के आप बोल सकते हो पैकेजेस देगा, डिफरेंट तरह के ऑफर्स देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, जिससे कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डिमांड करेगा। इजी गोइंग उसको लोन अवेलेबल होगा, चाहे होम लोन है, कार लोन है, अदर ड्यूरेबल गुड्स के लिए लोन है। तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो आरबीआई कंज्यूमर क्रेडिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर इसके अपोजिट एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या करेगा, इस कंज्यूमर क्रेडिट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करेगा। स्पेसिफिक लोन जो होते हैं, चाहे वो कार लोन, होम लोन, कंज्यूमर क्रेडिट, जो भी जहां पर आरबीआई चाहेगा, उसको लगता है उस एरिया के अंदर कंज्यूमर क्रेडिट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। सो बाय ऑल दीज पॉइंट्स excess and deficient demand will comes control in the economy. We divide them into two categories: fiscal policy measures and monetary policy measures. All these points are given in approximately all books. You can read them very carefully and try to learn meaning of all these points. In the next class we will start new chapter and I will send you selected portions of this chapter on WhatsApp. Thank you.